Hello 8th class. Today I am going to complete our chapter the Union Legislature with the topic the Rajya Sabha and the powers and functions of the Parliament. In the previous video, in the first video of this chapter, I tell you about the parliamentary democracy, then three organs of the government, that is the executive, legislature and the judiciary. Then after this, I tell you about the division of powers, how the powers are divided between the central and the state government. It is divided into three lists: union list, state list and the concurrent list. Then next was about the Lok Sabha, how the members of Lok Sabha are elected, what is the composition of the Lok Sabha and what is the term of the Lok Sabha members. And then after this, qualifications, which qualifications are required to become a member of the Lok Sabha, who is the presiding officer of the Lok Sabha, and I also tell you about the various sessions of the Lok Sabha. Now in today, firstly I will discuss with you about the Rajya Sabha. So Rajya Sabha is the upper house or the council of states. Lok Sabha is called the lower house and Rajya Sabha is called the upper house. And it is also called the Council of States. Why it is called the Council of States? Because the members of the Lok Sabha comes from the various state legislative assemblies. So it is called the Council of States. The members of Lok Sabha are elected indirectly. Students, it is a major difference between the Lok Sabha and Rajya Sabha, that Lok Sabha members are elected directly and Rajya Sabha members are elected indirectly by the legislative assemblies members of the state. And now you know it very well, each and every state have their own legislative assemblies. देखो जैसे कि यूनियन पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो उसी वे से स्टेट्स के भी 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो उसी वे से जो स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज की मेंबर्स होते हैं वो खुद दे अमंग देमसेल्व्स इलेक्ट द मेंबर्स फॉर द राज्य सभा. नेक्स्ट इज द कंपोजिशन. कंपोजिशन मीन्स हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द राज्य सभा. सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज द 250. मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्य सभा इज 250. आउट ऑफ 250, 238 members come from the states and union territories and 12 members are nominated by the president. Students, 2 members are nominated by the president for the Lok Sabha and 12 are nominated by the president for the Rajya Sabha. And these 12 members who are nominated by the president, they are experts in the fields of art, literature, science, sports or social service. So among these fields who are experts, they are nominated by the president and that is the 12 members. Next is a term. So term means what is the time period, for how many years a Rajya Sabha works. So Rajya Sabha, students, it is, please remember this thing, Rajya Sabha is a permanent house. It cannot be dissolved. ये कभी भी खत्म नहीं होती है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी. इट इज अ परमानेंट हाउस. लोकसभा टर्म इज 5 years, बट द राज्यसभा टर्म इज नॉट देयर. इट इज अ परमानेंट हाउस बट द मेंबर्स, अब ये नहीं है कि मेंबर्स कभी रिटायर नहीं होंगे. इसके मेंबर्स रिटायर्ड, राज्यसभा के मेंबर्स होंगे वो रिटायर होंगे आफ्टर एवरी 6 years. तो मेंबर्स की जो टर्म है वो 6 years है. एंड 1/3 मेंबर्स, अब हमने कहा कि परमानेंट हाउस है तो परमानेंट कैसे होगा जबकि मेंबर्स 6 years के बाद रिटायर हो रहे हैं. सो तो 1/3 मेंबर्स, जो इसके 1/3 मेंबर्स होंगे, दे रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 years. तो 2 years के बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाएंगे, मीन्स 2/3 रिमेन देयर ऑन देयर पोस्ट. इट इज अ परमानेंट हाउस एंड जो रिटायर हुए हैं उनकी जगह पर न्यूली मेंबर्स इलेक्ट हो जाएंगे. एंड आफ्टर 2 years जिनका टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा, जिन मेंबर्स का 6 years कंप्लीट हो जाएंगे, दे विल रिटायर देन एंड देन उनके जगह पर फिर से न्यू मेंबर्स एड अप हो जाएंगे. तो इस वजह से ये क्या है, इट इज ए परमानेंट हाउस. इट कैन नॉट बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट. Next is about the qualifications. So qualifications, mainly there are the same qualifications which are needed to become a member of the Lok Sabha.
Only one qualification is different here, that is for the membership of Lok Sabha, he or she an individual must be, जो उसकी एज लिमिट है, इट मस्ट बी एटलीस्ट 25 years, बट फॉर राज्यसभा ही और शी मस्ट बी ऑफ 30 years ऑफ एज। तो 30 years ऑफ एज जो है वो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर एटलीस्ट जो कि होनी चाहिए टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। बाकी की सेम है लाइक द लोकसभा, दैट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ रजिस्टर्ड वोटर। तो एज लिमिट जो है दैट इज अ मेड डिफरेंस ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। नेक्स्ट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा? दैट ही इज द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा एंड ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। देखो एक्स ऑफिशियो का मीनिंग क्या होता है? जब एक पर्सन की अपनी एक पर्टिकुलर पोस्ट है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट है, उसकी एक पर्टिकुलर पोस्ट है दैट ही इज द वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्टली ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, तो उसकी सेपरेट एक अलग और एक ऑफिस को होल्ड कर रहा है वो, तो दैट इज कॉल्ड द एक्स ऑफिशियो। सो इन दिस वे जो उसके सेकेंड पोजीशन है दैट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, सो हिज ऑफिस इज कॉल्ड द एक्स ऑफिशियो ऑफिस। So Vice President is ex officio chairman of the Rajya Sabha and he discharge same duties as the Speaker of the Lok Sabha. तो जैसे स्पीकर जो लोकसभा का स्पीकर है उसकी ड्यूटीज होती हैं, वैसे सेम ड्यूटीज जो होती हैं दैट आर परफॉर्म्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट एज द चेयरमैन ऑफ द Rajya Sabha. तो these are about the Rajya Sabha, that is it is upper house or council of states. Members are elected indirectly by the legislative assembly members of the state and composition maximum of 10 250 and 238 members come from the states and union territory. 12 members are nominated by the president. Term क्या है इसकी? It is a permanent house and members term is 6 years. Qualifications क्या है? A citizen of India, at least age limit जो है 30 years, at least age at least 30 years and a registered voter. Presiding officer, vice president is the presiding officer of the Rajya Sabha. Next is the powers and functions of the Indian Parliament. तो powers and functions में क्या है? First of all, there is a legislative function which is the foremost duty of the Parliament to perform. The Parliament has the power to make laws on the subjects mentioned in the Union List. तो Union List में जितने भी subjects हैं उनके ऊपर लॉ बनाने की जो पावर है it is with the Parliament. Secondly, the Parliament and state legislatures both make laws over the matters in the concurrent list. बताया था मैंने आपको 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द concurrent list. तो यूनियन लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा. Then on the concurrent list, Parliament and state legislatures both make law that are subjects mentioned in the concurrent list. And thirdly, it can also amend. Amend का मीनिंग क्या होता है? To change. तो it can also amend the provision of the Constitution of India. तो किसी भी provision को change करने की पावर है with the Parliament. तो these are the legislative functions of the Indian Parliament. Second is the कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करता है पार्लियामेंट? जो वेरियस मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, हाउ द पार्लियामेंट कैन कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव? सो द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लोकसभा फॉर ऑल एक्ट्स एंड पॉलिसीज। जो भी देखो वो काम करते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो भी पॉलिसीज को अडॉप्ट करते हैं, उसके ऊपर एक्ट करते हैं, तो उस चीज के लिए वो आंसरेबल होंगे लोकसभा में। द लोकसभा मेंबर्स कैन आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव फॉर देयर पॉलिसीज, फॉर देयर एक्ट्स। सेकेंडली, द लोकसभा कैन रिमूव द एग्जीक्यूटिव थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स देखो, एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स तब तक रिमेन रहेंगे लोकसभा में जब तक लोकसभा के मेंबर्स उनको सपोर्ट करेंगे। जब तक लोकसभा के मेंबर्स उनको सपोर्ट करते हैं तब तक वो अपनी सीट पर, अपनी पोजीशन पर रिमेन रहेंगे। बट अगर लोकसभा में उनके अगेंस्ट, अगर एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, अगर ये मोशन पास होता है, देन होल ऑफ द एग्जीक्यूटिव हैव टू रिजाइन। उसके बाद लोकसभा के फिर से इलेक्शन होंगे, री इलेक्शन होंगे और फिर से न्यू गवर्नमेंट बनेगी। तो इस वजह से लोकसभा कैन रिमूव द एग्जीक्यूटिव थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। Thirdly, it may reject a bill or a budget proposal of the cabinet. Cabinet कौन होते हैं? They are the high
रैंक ऑफिसर्स। तो हाई रैंक मिनिस्टर्स होते हैं ये गवर्नमेंट के। तो अगर कैबिनेट के मिनिस्टर्स जो बजट प्रपोजल रखते हैं या फिर कोई बिल का प्रपोजल रखते हैं तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास राइट है उसको रिजेक्ट करने का, अगर उनको लगता है इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। थर्डली इज द फाइनेंशियल फंक्शंस। Parliament keeps control over the finance to prevent the executive from assuming arbitrary powers. Arbitrary powers means अपनी मर्जी से वो कोई भी ऐसे जो मनी है उसको स्पेंड नहीं कर सकते हैं। Executive cannot spend the money without the permission of the parliament. तो पार्लियामेंट कंट्रोल करता है फाइनेंस के ऊपर to prevent the executive from assuming arbitrary powers. Secondly, the executive कैनॉट स्पेंड एनी मनी। अब देखो यहीं पर सेम पॉइंट है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो मनी को स्पेंड नहीं कर सकते विदाउट पार्लियामेंट्री सेंशन। जब तक पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस सेंशन नहीं करेंगे मनी को, एग्जीक्यूटिव्स को मनी सेंशन नहीं करते हैं, तब तक जो है एग्जीक्यूटिव मनी को स्पेंड नहीं कर सकते। थर्डली, द एनुअल बजट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। बजट क्या होता है? दैट इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर। जब एस्टिमेट होता है, एक्चुअली बजट क्या होता है बेटा, देखो हमारे घर का भी एक बजट होता है कि हमारे आपके फादर की, मदर की, किस आपके जो भी घर में अर्निंग जो भी करते हैं मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तो उनकी मनी की इनकम कितनी है मंथ की, ईयरली, तो उसके बेस पर हमारे घर का एक बजट होता है। उसी बेस से कंट्री का बजट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट होता है कि कितनी एक साल में हम एस्टिमेट होता है कि एक्सपेंडिचर करेंगे और कितनी हमें इनकम आ सकती है। तो उसके बेस पर हर फाइनेंशियल ईयर में एक बजट बनता है, तो पार्लियामेंट उस बजट को पास करता है। दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। टैक्सेस कैन नॉट बी इम्पोज्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो टैक्सेस जो इम्पोज करते हैं एग्जीक्यूटिव, जो भी बिल्स वगैरह उसके लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रपोजल्स लेकर आते हैं, तो वो विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी इम्पोज्ड। एंड मनी बिल, देखो 2 टाइप्स के बिल होते हैं, एक होता है मनी बिल, एक होता है ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल जो आपका बजट होता है वो भी मनी बिल में इंक्लूड होता है। तो ऐसे जो मनी बिल्स होते हैं दे कैन ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, वो ओनली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होंगे। देखो अगर जो ऑर्डिनरी बिल होंगे वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, चाहे तो राज्यसभा में चाहे वो लोकसभा में। बट मनी बिल जो एक्चुअली दिस इज द स्पेशल पावर ऑफ द लोकसभा, दैट मनी बिल कैन ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। ओके, तो दीज आर द फाइनेंशियल फंक्शंस। फोर्थ इज द इलेक्टोरल फंक्शंस। नाउ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट किसको इलेक्ट करेंगे? प्रेसिडेंट को एंड द वाइस प्रेसिडेंट। सेकेंडली, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, अब आपको पता है लोकसभा के मेंबर्स किसको इलेक्ट करेंगे? दे इलेक्ट द स्पीकर फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स एंड आफ्टर स्पीकर दे आल्सो इलेक्ट अ डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर वर्क्स इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। फिफ्थ इज द जुडिशियल फंक्शंस। द पार्लियामेंट हैज द पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट। देखो इम्पीच क्या होता है? एक्चुअली इम्पीच एक स्पेशल प्रोसीजर होता है। इम्पीचमेंट इज ए स्पेशल मेथड टू रिमूव द हाई अथॉरिटी ऑफिसर्स, हाई अथॉरिटी पर्सन्स ऑफ द इंडिया। तो इम्पीचमेंट इज ए स्पेशल प्रोसीजर टू रिमूव द हाई अथॉरिटी पर्सन्स ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट के पास पावर है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ऑडिटर जनरल एंड मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन। अदरवाइज इम्पीचमेंट के बिना बेटा किसी भी वे से हम इनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। दिस इज a special procedure. In the next chapter, I will tell you about when I tell you about teach you about the chapters regarding the president and the vice president. Then I will tell you in detail what is the impeachment method. Okay. So this is all about today. That is now I tell you about the functions of the parliament. That is the legislative functions, means law making functions here. Secondly, control of the executive from various, that is motions. Parliament can have a control of the executive. There are the financial functions. It passes annual budget, pass the money. It means executive cannot spend the money without the parliamentary sanction. Money bill can only be introduced in the Lok Sabha. Then there is electoral functions. The members of parliament elect the president, vice president, and also the Lok Sabha members elect the speaker and deputy speaker. In the judicial functions, parliament has the power to impeach the president, vice president, judges of the Supreme Court and High Court, and
Auditor General and the members of the Public Service Commission. So this is all about today. Our chapter is completed. Hope you are studying at your home. Have a nice day. Goodbye all of you.